یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو. جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا. یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے، اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو حقیقی گستاخ ہیں وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر. بریلویوں کو دیوبندیوں سے چڑھا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ باتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا، یہ گستاخ، یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے گستاخ رسول ہیں. ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی، جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں، ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا، جو متشدد ہیں بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں، تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں گستاخ رسول ہیں. تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی یہ وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دے کے. صحیح ہے نا؟ ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں. تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، گستاخ رسول ہے گستاخ رسول ہے. پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی، ان کی کوئی عبارتیں نکالی، یہ گستاخ رسول ہے. حالانکہ وہ بھی نام تو بہر اللہ رسول کا لیتے ہیں، دعوت ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں. بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں اس صدی کے مجدد اعظم. یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی. جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے. اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلویوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے. اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ. ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے. ان کا مقصد ختم نبوت کا انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں. پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ. یہ سارے فتوے کس کے ہیں گستاخیوں کے؟ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں. اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. انجینئر نے کہا نہیں مطلب نہیں، جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ نعرے لگائے نہیں لگائے انجینئر نے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا، تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے، ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. انجینئر کے جو فینز ہیں اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو، کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہی مطلب ہے. تو آج اپنے جال میں سیاد آ گیا، خود پھنس گیا ہے. تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے گستاخیوں کے فتوے. جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا. یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا، لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے معاذ اللہ. ان کے اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو، کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے. شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو. تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کے فینس نے کیا کہا؟ لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں. بھائی شریعت کا حکم ہے کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 غلط اور 1 صحیح، تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا. یہ بابوں کا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے. تو آج وہی بابا اپنے ہی فتووں کا خود ہی پھنس گیا. ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ میں ذرا پی لوں، کیا خیال ہے؟ مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص شہد ہے، دکان سے خریدا ہوا شہد نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی بات؟ بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص چھوٹی مکھی کا. اور اس میں جو لیمن ڈلا ہے وہ میرے اپنے درخت کا لیمن ہے. آج جمعے کی نماز سے پہلے میں درخت سے لیمن توڑ رہا تھا، خالص آرگینک، کوئی یوریا نہیں ہے. مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ 1 گھنٹہ کم از کم لیمن اس پانی کے اندر پڑا رہا ہے، اس سے اس کی کڑواہٹ آئی ہے.
लेमन के छिलके में बहुत सारे खजाने दफन हैं, समझ रहे हो? आहा, चलो आगे, अल्लाह नजर बस से बचाए। खैर, क्या बात कर रहा था भाई मैं? हाँ, बुजुर्गों को बदफेली का मुर्तकिब इस बंदे ने करार दिया, और चिश्ती को कह दिया कि अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है, मुहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को। दज्जाल कहा, पता नहीं क्या क्या कहा है, इतने बड़े बड़े, खुदा के लिए तुम कांपते क्यों नहीं हो यार? तुम्हें इतनी जबान से ऐसे अल्फाज निकालते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? अल्लाह का खौफ क्यों नहीं आता? तो हम तो भाई उनको भी, उनके बारे में भी कह रहे थे कि वो गुस्ताख रसूल नहीं है। उनकी सीरत उठा के देखो, वो गुस्ताख नहीं है, उनकी बात का ये मतलब है। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ अल्लाह नक़्ल कुफ्र दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माअज़ अल्लाह नक़्ल कुफ्र नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माअज़ अल्लाह नक़्ल कुफ्र दज्जाल है, माअज़ अल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पर नहीं लगता। तो इसलिए हम इन मुतशद्दिद मौलवियों से कहते हैं कि आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। ये तो वही काम किया जो इंजीनियर करता रहा है बुजुर्गों के खिलाफ, जिस पर हम उस पर एतराज करते रहे हैं। तो आपने भी वही काम शुरू कर दिया, फिर उसमें और आप में फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हो गया? तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C में हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई, उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ कि ये इंजीनियर के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या। फिर मैं अगर ये बात नकल कर रहा हूं तो मुझ पे भी लगाओ। फिर तो मेरे भाई, तो मैं कह रहा हूं कि ये 295C का कानून, ये कानून बिल्कुल दुरुस्त है, हम इस कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको मौलवियों ने, जो मुतशद्दिद मौलवी हैं, उन्होंने खिलवाड़ बनाया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है। इसको तमाशा बनने नहीं देना है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? कुछ मुतशद्दिद मौलवियों की अपनी ठरक है, जो उन्होंने दुश्मनी निकालनी है, तो उसके लिए 295C जैसे मुकद्दस कानून का सहारा ले रहे हैं। वो ये 295C की तौहीन है, मैं समझता हूं इस कानून की तौहीन है ये। जब चाहो मुंह उठा के जिसको चाहो गुस्ताख रसूल करार दे दो। जब भी कोई शख्स कलाम करता है, शरीयत उसको मोहलत देती है कि इससे इसकी बात का मतलब पूछा जाएगा कि तुम्हारा मकसद क्या था। जुनैद जमशेद ने जब कोई कलाम किया, उससे पूछा जाना था कि आपका मकसद क्या था, उसको एक्सप्लेन तो करने देते। फौरन फतवा लगा दिया इसने, हजरत आयशा की तौहीन की, और जो एयरपोर्ट पे उसके साथ अशर हुआ। यह बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो इसलिए जाती दुश्मनियों का अब ये जो है ना कानून, ये कुछ मौलवियों ने जाती दुश्मनियों का जरिया बनाया है। हम नामूस रिसालत से बढ़कर किसी चीज को वैल्यू नहीं देते। मुसलमान जो भी हो आशिक रसूल है, जो नबी से मोहब्बत नहीं करता वो मुर्तद है। तो इसलिए इस मसले में मैं बाबांगे दोहल कहता हूं, चाहे इंजीनियर से मेरे 100 इख्तलाफात हो, लेकिन ये जो 295C इस बेस पे लगाया गया है कि उसने ईसाइयों के बारे में ये कहा कि दज्जाल है, माज़ अल्लाह नक़्ल कुफ्र, नबी की तरफ निस्बत की ईसाइयों की तरफ, तो ये तौहीन का केस नहीं बनता इस पे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ, इंजीनियर ने इसके अलावा बहुत सारी फजूल बातें की हैं। मौलाना इमरान सफदर साहब हैं, कैसर अहमद राजा साहब हैं, आप उनकी वीडियोस देख लें। इमरान सफदर साहब ने तो एक एक कच्चे छट्टे खोले में, और किस कदर बदकलामी की है साहबा के बारे में, किस कदर बदजबानी की है साहबा कराम के बारे में, तो उस पर आप एक्शन लें, उस पर हम भी आपके साथ हैं। लेकिन ये जो बना दिया है कि जी ईसाइयों के बारे में ये कहा, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने ईसाइयों के बारे में ये कह दिया कि ईसाइयों ने माज़ अल्लाह हमारे नबी को दज्जाल कहा है, तो ईसाइयों की जिंदगियों को इसने गैर महफूज कर दिया पाकिस्तान में। ये किसी हद तक इस बात की लॉजिक हो सकती है कि ईसाइयों की जिंदगियों को अब कुछ मुतशद्दिद लोग उठेंगे, ईसाइयों को ना मारना शुरू करते हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ईसाई 4 आदमी थोड़ी है, पूरी मसीह बरादरी है, और वो मना भी कर रहे हैं, भाई हम नहीं कहते नबी को माज़ अल्लाह, हम दज्जाल नहीं कहते। लेकिन मान लिया जाए तो जिसने ये 295C का पर्चा कटाया है इंजीनियर के खिलाफ, उसने इंजीनियर की जान को भी तो गैर महफूज कर दिया ना। फिर उसके खिलाफ भी एहतजाज होना चाहिए। जब हमारे मुल्क में किसी पर गुस्ताखी का, गुस्ताखे रसूल का फतवा लगता है कि ये गुस्ताख है, तो आपका क्या ख्याल है, उसकी जान महफूज है? ना ना ना, उसके कोर्ट ने अगर सजा नहीं दी ना उसको, तो अवाम में से कोई सरफिरा उठता है और उसको उड़ा देता है और हीरो बन जाता है। तो ये 100 इख्तलाफात इंजीनियर अली मिर्जा से हमारे, लेकिन इंसानी खून से, इंसानी जानों से खेलना ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। और एक अहम तरीन बात उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम के लिए, वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये आप सवाल अगर किसी भी बड़े दारुल इफ्ता में लिख के भेजें, मिसाल के तौर पर इंजीनियर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना ईसाइयों की तरफ निस्बत की, आप जामिया रशीद में फतवा भेजें, आप बिन्नौरी टाउन में फतवा भेजें, आप बिन्नौरिया में भेजें, आप दारुल कुरंगी में भेजें, जामिया फारूकिया में, या बरेलियों के किसी बड़े मोतबर इदारे में, कोई भी इस पे गुस्ताखी का हुक्म नहीं लगाएगा।
समझ में आ रही है बात? कोई भी मोतबर दीनी इदारा इस बेस पे नहीं कहेगा कि इसने गुस्ताखी की है, किसी और बेस पे कह दे कोई और बात। तो इसलिए अगर आपने 295C का पर्चा कराना है तो ये पर्चा नहीं बनता, इस पे नहीं बनता पर्चा। समझ में आ रही है बात? कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा उसको, मैं ये नहीं कह रहा वो साहबा के बारे में बहुत अच्छा बोलता है, उसने तो जो बकवासात की है वो दुनिया के सामने है। मौलाना इमरान सफदर साहब का भी नया क्लिप सामने आया है, वो देख लें आप। और हाँ, एक अहम बात ये कि जब आप किसी को गुस्ताख करार दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको मुसलमान करार दे रहे हैं या मुर्तद करार दे रहे हैं? बोलो। गुस्ताखे रसूल मोमिन हो सकता है, तो आप उसको काफिर करार दे रहे हो कि नहीं करार दे रहे? और हदीस में क्या आता है, अगर तुम किसी को काफिर कहो और वो ना हुआ तो वो कुफर का वो कहां लौटेगा? तुम्हारी तरफ लौटेगा। और पूरी उम्मत की उलमा का इजमा है, इसमें कोई देवबंदी बरेलवी का फर्क नहीं है। शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, पूरी उम्मत का इस मसले पर इजमा है। और आज से नहीं, सदियों से इजमा है कि एक आदमी के कलाम ऐसा कलाम किया जो कुफरिया कलिमा है, लेकिन उसकी बात के 100 मतलब निकाले जा सकते हैं, 99 मतलब निकलते हैं कुफर वाले। एक मतलब ऐसा है कि जिसमें तावील करके मुसलमान बनाया जा सकता है उसको। पूरी उम्मत का इजमा है कि वो एक मतलब लिया जाएगा उसका, क्योंकि इस्लाम में किसी मुसलमान को काफिर करार दे देना यह उसको कत्ल करने से ज्यादा बदतर है। तो ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, कुरान के अल्फाज है, ईमान वालों किसी की दुश्मनी तुम्हें अदल और इंसाफ से ना रोके। अगर आपको किसी से दुश्मनी है तो यह नहीं कि इस्लामी हकाम ही आप चेंज कर दें। तो इंजीनियर से तो हमें यह शिकायत है कि आप भी इंजीनियर के जो फैंस है ना, उनसे तो हमें यह शिकायत है कि आज आप अपने बाबा का मैं तो दिफा कर रहा हूं इंजीनियर का, मेरा बाबा नहीं है वो, लेकिन आप किस मुंह से दिफा कर रहे हो? अब आप कह रहे हो ना उसका ये मतलब नहीं था, उसका ये मतलब था, तो हम भी तो ये कहते थे इशरफ अली थानवी का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था, मोइनुद्दीन चिश्ती का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। और जो बाबों के वाकयात हैं जिनमें आपने उनको माज अल्लाह इगलामबाजी का मुर्तकब करार दे दिया, हम क्या वो बड़े नेक बुजुर्ग थे, उनका ये मतलब नहीं था कि वो इसमें मुब्तला थे। मुब्तला होते इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पब्लिक के सामने ये काम ना कर रहे होते, लेकिन आपने कहा नहीं मतलब कुछ नहीं है, मुफ्ती तारिक मसूद अपने बाबों का दिफा कर रहा है। तो आज आपका तो मुंह ही नहीं है अपने बाबे का दिफा करने का, आपका तो मुंह सिरे से है ही नहीं। हमारा फिर भी मुंह है, हम अपने बाबों का भी दिफा कर रहे थे और तुम्हारे बाबे का भी दिफा कर रहे हैं। तो दिफा इस सेंस में कि ये वाली जो शेख है ये गलत है, ये नहीं लग सकती, 295C का केस नहीं है ये। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना, नहीं 295 से मंजी ठोक देंगे, तो मेरे भाई आपके अपनी किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है ना, उससे आपकी मंजियां ज्यादा ठुकेंगी, वो उठने दो अभी। क्या एक शायर ने कहा है ना कि सौफ तरौना इदन कशफल गुबार अफरसुन तहत रिजली का अम हिमार, गुबार छटने दो फिर पता चलेगा कि तू घोड़े पे बैठा हुआ था या गधे पे बैठा हुआ था। जब तक गुबार होता ना, आप तगड़ तगड़ दौड़ते हुए आ रहे हो, लोग समझते हैं बड़ा तेज रफ्तार घोड़ा है, वो गुबार की वजह से पता ही नहीं चल रहा होता, और लोग वीडियो बना रहे हैं, भाई तगड़ तगड़ तगड़, घोड़ा ऐसे गधा ऐसे दौड़ता नहीं, लेकिन गुबार में लगता है कि शायद दौड़ रहा हो। जब गुबार छटता है पता चलता है कम बहुत तेज रफ्तार घोड़ा तो दूर की बात, तो गधे पे आ रहा है। तो ये जो 295C जरा जरा सी बातों पे गुस्ताखी के फतवे लग रहे हैं ना, ये अगर मार्केट में ज्यादा हो गए, जो कि हो गए हैं, तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। ऐसे लोग हैं हमारे इल्म में, पूरा जेवर खा गई, सोना खा गई जो मेहर में दिया था, और भी चेक साइन करवा के पूरी जायदादें खा के आप रोड पे गटर के ढक्कन पे बैठे हुए हैं और 4 शादियों के फजाइल बयान कर रहे हैं। ऐसे वाकयात ही होते हैं। तो जाहिर है आपको ख्याल होगा कि यार अगर अल्लाह ने तो वादा किया है कि मैं निकाह पे गनी कर देता हूं, तो ये गनी तो नहीं हो रहा है। ऐसे वाकयात हैं। बच्चा पैदा हुआ, पहले एक का खर्चा नहीं था और मसाइल खड़े हो गए, ऐसे वाकयात हुए हैं। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। इसी तरह कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। लेकिन हम देखते हैं जानवर भूख से मरते हैं, समझते हो?